Good morning, students. Hope you will be fine at your respective places. Today, we are going to start. We are going to rather discuss another important cycle, that is the biogeochemical cycle. And today, we are going to discuss the very important, that is the phosphorus cycle. Now, फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे लाइक दैट ऑफ कार्बन, फॉस्फोरस जो है इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बात कर लेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, इन ह्यूमन बीइंग्स में हम बात कर लेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स, वहाँ पर हम देखेंगे कि अबाउट 80% ऑफ द फॉस्फोरस जो है इट इज़ प्रेजेंट in the teeth and in bones. Go 80% phosphorus that is present in teeth and that is present in bones. दूसरी बात, phosphorus जो है it forms an important या it forms as significant part of the structural framework for DNA and RNA. First, if we talk about this phosphorus है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे इट फॉर्म्स अबाउट या इट ह्यूमन बींग्स दे कंटेन अबाउट 80% ऑफ द फॉस्फोरस एंड दैट फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द टीथ, दैट इज प्रेजेंट इन द बोन. दूसरी बात, दिस फॉस्फोरस इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट what we will call as of the structural framework of DNA and RNA. Also हो गए दो. तीसरा, फास्फोरस की अगर हम बात कर लेंगे, दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ATP जो हम बात कर लेंगे. Now, what we have to discuss today, that was about the introduction about the phosphorus, that is, it is biological significance where it is found rather. अगर हम बात कर लेंगे फॉस्फोरस साइकिल, अगर हम फॉस्फोरस साइकिल को डिफाइन करने की कोशिश कर लेंगे, इट इज़ सिंपली, अगर हम डिफिनीशन इसकी बताएंगे फॉस्फोरस साइकिल की डिफिनीशन सिंपल, इट इज़ ए बायोजियोकेमिकल साइकिल या बायोजियोकेमिकल प्रोसेस रादर, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, सिंपली जैसे हमने कल कार्बन में पढ़ा, दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू लिथोस्फीयर, वेरी गुड, थ्रू लिथोस्फीयर कामा हाइड्रोस्फीयर, अगर हम बात कर लेंगे थ्रू लिथोस्फीयर, थ्रू हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर and biosphere. So this is simply a cycle. This is a movement of the what we call as this phosphorus that takes place through the what we will call as through the lithosphere, through the hydrosphere, or we can simply say the biosphere. दूसरी बात, अगर हम बात कर लेंगे, since phosphorus and phosphorus containing compounds, since phosphorus and phosphorus containing compounds, they are mainly found on the rocks, they are mainly present on the land. Therefore यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि जो हमने एटमॉस्फेयर it does not play any significant role in the phosphorus cycle. So we will see here, since phosphorus की अगर हम बात कर लेंगे या phosphorus containing compounds की बात कर लेंगे, they are present only on the land, therefore atmosphere जो है it does not play no significant role in the phosphorus cycle.
Now, this whole process of phosphorus cycle is very slow process. Phosphorus cycle की अगर हम बात करें, it is a very slow process. Different weather processes, that is the weathering of the rocks, they help us in to wash the phosphorus from the rocks. अब जो मुख्तलिफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक, वो रॉक जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, व्हाट वी विल सी, जो डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस होती है, दे हेल्प, वो हमको मदद कर लेती है इन ऑर्डर टू वॉश द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द रॉक्स इनटू दिस सॉइल. दिस फॉस्फोरस इज देन एब्जॉर्ब्ड इन द ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल, and then this phosphorus, it is absorbed by the plants, and then it is used in the various biological processes. Now, in the phosphorus cycle, what we will see, there are some steps which are taking place in the phosphorus cycle. There are mainly 4 steps which takes place in phosphorus cycle. Steps in phosphorus cycle. What are these? First one, weathering, that is the breakdown of the rock, phosphorus containing rock. Second one, absorption by the plants. Third is absorption by animals. फोर्थ हमारे पास है, दैट इज द डिकम्पोजिशन. लेट अस ट्राई टू डिस्कस वन बाय वन. वेदरिंग में क्या हो जाता है? वेदरिंग सिंपली मीन्स, अगर हम इसको कहेंगे, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक. सिंस हमको ये भी पता है कि फॉस्फोरस इट इज mainly found in the rocks, it is found in the rocks in abundance. That is why phosphorus cycle जो है, it starts in the earth's crust. So what we will see, जो rocks ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, which are found in the earth's crust, they undergo the process of what we'll see, the weathering वहाँ पर हो जाती है. वहाँ पर हम देखते हैं कि जो phosphate salts होते हैं, phosphate salt जो होते हैं, they are broken down from the rocks, and these salts are washed away into the ground where they mix with this soil. जहाँ पर वो सॉइल के गो. वेदरिंग में हम क्या देखते हैं कि व्हाट वी विल सी हियर, जो फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द रॉक्स, दीज साल्ट्स आर वॉश्ड अवे इनटू द, वो किस में चले जाते हैं, इनटू द ग्राउंड वेयर दे मिक्स इन द सॉइल. फिर सिंपली एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स. अब जो फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं, these phosphate salts, हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल जो होते हैं, दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड देन दे आर इजली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू रूट्स. द फॉस्फेट साल्ट्स, दे आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर, वो वाटर जो सॉइल पोर्स में पाया जाता है, एंड देन दिस फॉस्फेट साल्ट, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. हाउएवर, जो हम अमाउंट देखते हैं कि phosphorus which is present in the soil, that is very much less. सॉइल में हम देखते हैं कि जो phosphorus है, that is present very much less. That is why हम ये देखते हैं कि फार्मर जो होते हैं, they make the use of the fertilizer, that is the phosphate fertilizers on their agricultural land in order to increase the crop yield. अब जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? Aquatic plants, they also absorb inorganic phosphorus, from कहाँ से? lower layers of water bodies. Lower layers of water bodies.
अब जो सिंस फॉस्फेट साल्ट जो होते हैं दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर प्रॉपरली, सिंस फॉस्फेट साल्ट दे डू नॉट phosphate salts they do not dissolve in water properly, thus they affect the plant growth in aquatic ecosystem. वहाँ पर थोड़ा बहुत उसका असर रह जाता है. लेकिन अगर हम देखते हैं ऑन द लैंड जो फॉस्फेट होता है, द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल दैट इज वेरी मच लेस. दैट इज़ वाई वहाँ पर फार्मर जो होते हैं दे मेक द यूज़ ऑफ द फॉस्फेट फर्टिलाइजर. लेकिन अगर हम बात कर लेंगे एक्वेटिक प्लांट्स की, दे एब्जॉर्ब द इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस फ्रॉम lower layers of water bodies. Since phosphate salt they do not dissolve in water properly, they affect the plant growth in aquatic ecosystem. Third, जो हमारे पास साइकिल में that is absorption by animals. अब जो प्लांट एनिमल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स or by consuming the plants, what we called as this through food chain. अब जो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्रू फूड चैन वो चला जाता है कि वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्लांट एनिमल्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स और बाय कंज्यूमिंग द प्लांट ईटिंग एनिमल. अब जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस साइकिल की देखते हैं हम is faster in plants and animals as compared to that of the rocks. The rate of phosphorus cycle is faster in plants and animals when compared to the rocks. Third जो है that is decomposition. Simply जो हमने already पढ़ा, when plants and animals die they get decomposed by the microorganism, they get decomposed by the what we called as the bacteria. During this process जो ऑर्गेनिक फॉर्म है फॉस्फोरस की इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म and which is recycled to soil and water. सो डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, ऑर्गेनिक फॉर्म किसकी, फॉस्फोरस की, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म विच इज रिसाइकल्ड इनटू सॉइल एंड वाटर. नाउ फिर हम क्या देखते हैं कि सॉइल एंड वाटर जो होते हैं दे विल एंड अप इन सेडिमेंट्स, दे विल एंड अप इन द रॉक्स विच विल अगेन रिलीज फॉस्फोरस बाय व्हाट वी कॉल्ड एज दिस वेदरिंग. दस द फॉस्फोरस साइकिल इट स्टार्ट्स अगेन. फिर फॉस्फोरस साइकिल एक किस्म का देखिए ओवर हो जाता है, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि when this organic form of phosphorus is converted into the inorganic form of phosphorus, what we will see there, what happens there, that it is recycled to soil and water. अब जो soil and water they end up in sediments, they end up in rocks, वो आखिरकार sediments में चले जाते हैं, वो आखिरकार soil और water rocks में चले जाते हैं. फिर वो rocks फिर again they release, वो इस phosphorus को release करते हैं by means of this weathering. thus the phosphorus cycle जो होता है वो वहाँ से फिर start हो जाता है. Now there has been some impact on the phosphorus cycle by human activities. A number of human activities like use of fertilizers, eutrophication अगर हम कहेंगे, it has a great effect on the phosphorus cycle. अब जो हम फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, जो हम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द फॉस्फोरस so that we can have got the better yield. लेकिन excess of these fertilizers, of these phosphate fertilizers, it reduces the fertility of the soil and is also harmful to the microorganisms that are present in the soil. When these are washed away
when these fertilizers, phosphate fertilizers, when these are washed away into the nearby water bodies, वहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो नियर बाय पर रिवर होगा, पॉन्ड होगा, वहाँ पर हम देखते हैं कि दैट दीज फर्टिलाइजर, दीज फॉस्फेट फर्टिलाइजर, दे आर वेरी मच टॉक्सिक टू द एक्वेटिक लाइफ. दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि कभी कभार जब हम देखते हैं शिपिंग ऑफ दिस फूड फ्रॉम फार्म्स टू द सिटीज़, जो हम देखते हैं कि जो फॉस्फोरस, द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस दैट इज़ वॉश्ड अवे इन द वाटर, कि जब हम माल लोडिंग अनलोडिंग कर लेते हैं, कुछ फास्फोरस हम देखते हैं कि दैट इट गेट्स वॉश्ड अवे इन द वाटर, जिससे हम देखते हैं कि यूट्रिफिकेशन हो जाती है. उससे हम देखते हैं कि अलगल ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. फिर हम क्या देखते हैं कि अलगल बलूम हो जाता है और वो डाई हो जाता, अलगल बलूम हो जाता है. दैट अलगल बलूम जो है दैट इज़ वेरी मच टॉक्सिक टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम. So in the whole, what we will see that in the whole process of phosphorus cycle, there are the 4 steps. First one is the weathering, second one is the absorption plant, third is the absorption animals, and fourth is decomposition. अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि फास्फोरस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर, सो एटमॉस्फेयर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द फास्फोरस साइकिल. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंपली जो फास्फोरस साइकिल की है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फास्फोरस थ्रू लिथोस्फीयर थ्रू हाइड्रोस्फीयर. अब जो इम्पोर्टेंट स्टेप जो हमारे फास्ट, दैट इज़ द वेदरिंग, दैट इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फॉस्फेट रॉक. एंड दिस फॉस्फेट रॉक हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या देखते हैं जी, फॉस्फोरस जो होता है इट इज़ रिलीज्ड इनटू द सॉइल. हियर इट मिक्सड विद द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दिस सॉइल एंड देन इट इज़ absorbed by the plants through the conduction of the water. Now when the plants, they are being eaten up by, they are being consumed by the animals, so this phosphorus it reaches to the animals. Now when the animals and the plants die, जब वो मर जाते हैं, कि जो हम देखते हैं कि द फॉस्फोरस व्हिच विल सी दे आर बीइंग डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन व्हाट वी विल सी, जो ऑर्गेनिक फॉर्म है फॉस्फोरस की, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म एंड देन दिस इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज रिलीज्ड इनटू द सॉइल. Here we will see then this phosphorus cycle, it somewhat becomes over, or we can say at this time when it combines with the rocks, या हम कहेंगे सेडमेंट्स में चला जाता है, रॉक्स में चला जाता है. देन अगेन व्हाट वी विल सी, जो हम देखते हैं कि वेदरिंग स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस साइकिल गोज ऑन. दिस वाज ऑल फॉर टुडे अबाउट दिस फॉस्फोरस साइकिल. देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू. And in the next topic we will start, we will move further in our syllabus, and we will start further. Until then, goodbye, God bless you, thanks.